Hello students, now today's session will be the last lecture of this chapter. So today I am going to discuss the remaining questions of this chapter. There are some in-text questions left and also there are some exercise questions left. And then I will discuss the last topic of this chapter which is power of lens. So starting with the remaining numericals and remaining questions. Everyone open page number 176 of your NCERT textbook. NCERT textbook का page number 176 open करो. And in that, see question number 1. There are 5 in-text questions. उसमें से आप question 1 देखो. A ray of light traveling in air enters obliquely into water. Does the light ray bend towards the normal or away from the normal? Obliquely means वो normally incident नहीं हो रही है, वो किसी angle पे incident हो रही है. So when a ray of light is passing from air to water, this will be the actual path. Now where this ray will bend? Towards the normal or away from the normal? Towards the normal. Now why? Because air is a rarer medium and water is a denser medium. So this ray of light will bend towards the normal because it is passing from a rarer medium to a denser medium. It is going from a rarer medium to a denser medium. This will be your answer. क्या लिखना है आपको? Ray of light will bend towards the normal as it is going from a rarer medium to a denser medium. Okay. Second question. Light enters from air to glass having refractive index 1.5. अब मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट मीडियम अगर एयर हो तो सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका क्या होता है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है. ये मैंने लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है. ओके, सो व्हेन अ रे ऑफ लाइट इज एंटरिंग फ्रॉम एयर टू ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर का मतलब क्या होगा? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास. सो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास दिया है 1.5. तो वो क्या हो गया? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया. व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास? वी हैव टू फाइंड स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास. Vg. Ng क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास. दोनों दो लेटर्स यहाँ पे क्यों नहीं लिखने? क्योंकि एब्सोल्यूट है. तो पहला मीडियम जब भी एयर होगा आपको यहाँ पे ए लिखने की जरूरत नहीं है. क्लियर? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास, दिस वी हैव टू फाइंड. नाउ एज डिस्कस्ड इन द प्रीवियस लेक्चर, लास्ट टू लास्ट लेक्चर में भी, you already studied the formula for finding absolute refractive index. Absolute refractive index क्या था? C by V. What is absolute refractive index? C by V. वैसे refractive index of medium 2 with respect to medium 1 क्या होता है? V1 by V2. But absolute में first medium क्या होता है? Air. So air में जो light की velocity है उसको हम किससे denote करते हैं? C से. और medium में V से. So this is the formula for absolute refractive index. अभी किसकी बात हो रही है? ग्लास की. So absolute refractive index of glass equals to C by Vg. Absolute refractive index of glass कितना दिया है? 1.5. Now what is the value of C? 3 into 10 raised to 8. Vg we have to find. So Vg कितना हो गया? 3 into 10 raised to 8 divided by 1.5. 1.5 का डबल क्या होता है? 3 होता है. So your answer is 2 into 10 raised to 8 meter per second. This is velocity of light in glass. This is your answer. Okay? आपको क्या दिया था? Absolute refractive index. You have to find. You were asked to find the velocity of light in glass. So velocity of light in glass को निकालना है. फॉर्मूला क्या है? N equals to C by V. ग्लास के रिस्पेक्ट में Ng equals to C by Vg. C की वैल्यू हमें पता है, N की वैल्यू हमें पता है. We have to find Vg. Simply you have to do the division over here. Now third question. Find out from table 10.3. अब टेबल 10.3 आप देखोगे तो आपको दी है पेज नंबर 175 पे.
just a page before this. Find out from table 10.3 the medium having highest optical density. Also find the medium with lowest optical density. जितना ज्यादा मीडियम डेंसर होगा उतनी ज्यादा उसकी डेंसिटी, ऑप्टिकल डेंसिटी होगी, क्लियर, और उतनी ही स्पीड उसमें कम होगी लाइट की. सो हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी किसकी है? डायमंड की. सो आपको लिखना है मीडियम हैविंग हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी इक्वल्स टू डायमंड एंड मीडियम हैविंग लोएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी इक्वल्स टू एयर. वैक्यूम क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि मीडियम नहीं है. सो कौन सी मीडियम में लोएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी है? एयर. और हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी किसमें है? डायमंड में. Clear? So this you have to write. Okay. You are given kerosene, turpentine and water. Fourth question. क्या कह दिया आपको? Kerosene, turpentine and water. In which of these does the light travel fastest? Use the information given in table 10.3. लाइट किस में ज्यादा फास्ट होती है? जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता है उतनी ज्यादा मीडियम की डेंसिटी बढ़ती है. कौन सी डेंसिटी? ऑप्टिकल डेंसिटी. और जितनी ज्यादा ऑप्टिकल डेंसिटी होगी उतनी ही कम क्या होगी? स्पीड होगी. क्लियर? यू हैव टू फाइंड इन विच मीडियम डज द लाइट ट्रेवल फास्टेस्ट. मीन्स the medium in which light will travel fastest will have the least optical density. Among these three, you have to refer table 10.3 to see which medium has the least optical density among these three medium. So, again refer to table 10.3. Water, kerosene and turpentine. The least optical density is of water. So, as water has least refractive index, light travels fastest in water. Among these three media, light travels fastest in water. Okay. Next question. The refractive index of diamond is 2.42. The refractive index of diamond is 2.42. What is the meaning of this statement? Diamond का refractive index कितना है? 2.42. What is the meaning of this statement? तो देखो, refractive index of diamond क्या होगा? C by Bg. Clear? ये होगा. जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस दिए वो एब्सोल्यूट है. 2.42 आप बुक के टेबल में भी देख सकते हो. रिफ्रैक्ट n इक्वल्स टू क्या होता है? C by B. सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इक्वल्स टू C by वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डायमंड. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड कितना दिया है? 2.42. सो VD कितना हो गया? C by 2.42. तो आप देख रहे हो कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डायमंड एयर में जो लाइट की वेलोसिटी है उससे कितना कम है? 2.42 टाइम्स कम है. कितना कम है? 2.42 टाइम्स कम है. आप देखोगे यहाँ पे क्या लिखा मैंने? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डायमंड इज c अपॉन 2.42. अपॉन मतलब कम हो रहा है, मल्टीप्लाई मतलब बढ़ रहा है. सो what is the meaning of this statement? The meaning of this statement is velocity of light in diamond is 2.42 times less than the velocity of light in air. This means that velocity of light in diamond is 2.42, no need to write this, times less than velocity of light in air or vacuum. Okay.
This means that velocity of light in diamond is 2.42 times less than the velocity of light in air or vacuum. Because हम उसको same ही लेते हैं. I hope this is clear. So write these answers. Some of the answers I have dictated. So write those also. And then open exercise of this chapter. Okay, we will do one thing. Before solving exercise, we will cover the last topic. Okay, we will discuss the last topic of this chapter, which is power of lens. So pause the video here, write down these questions, means answers, and then proceed with the lecture. Okay, your next topic is power of lens. Now, what is the meaning of power of lens? Some people are wearing spectacles, okay, because of eye disorders. They are wearing spectacles. अब spectacles क्या करते हैं? किसी के आपने देखे होंगे spectacles thick होते हैं, किसी के spectacles thin होते हैं. तो spectacles में क्या यूज होते हैं? लेंस यूज होते हैं. उसमें भी दो रिफ्रैक्टिंग सर्फेसेस होते हैं, एक बाहर एक अंदर की साइड पे. ठीक है. सो किसी किसी के स्पेक्टिकल्स थिक हैं, किसी किसी के स्पेक्टिकल्स थिन है. तो क्यों ऐसा होता है? बिकॉज उनकी जो करेक्ट करने के लिए जो पावर चाहिए होती है लेंस की, वो डिफरेंट होती है. सबके आईज में सेम डिसऑर्डर तो होता नहीं सेम एक्सटेंट का. अब जिसको जितना पावर चाहिए वो डिफेक्ट को करेक्ट करने के लिए उतना पावर यूज होता है. सो व्हाट इज पावर ऑफ लेंस? Power of lens is the ability of lens to converge or diverge light rays. Ability of lens to converge or diverge light rays is known as power of lens. Now see कि कोई भी एक लेंस है, वो अगर बहुत ज्यादा थिन है, if a lens is thin, तो वो क्या करेगा? रिफ्रैक्शन कम करेगा, क्योंकि अंदर ग्लास इतना ज्यादा नहीं है. It is very thin. So if a lens is thin, its ability to converge light rays will be converge or diverge light rays will be less. Suppose if a lens is thin, ठीक है, तो वो लाइट रेज को कम रिफ्रैक्ट करेगा. बट सपोज इफ अ लेंस इज थिक, तो वो लाइट रेज को ज्यादा रिफ्रैक्ट करेगा. तो जो लेंस थिक होगा, द लेंस विच इज थिक विल हैव मोर कन्वर्जिंग पावर. अब आपको पता है पैरेलल रेज कहां से पास होती है? फोकस से पास होती है. ठीक है. तो जो लेंस थिन है उसकी पावर क्या है? कम है. अगर लेंस थिन होता है तो उसका फोकस कहां हो जाएगा? दूर हो जाएगा, क्योंकि उसकी कन्वर्जिंग पावर क्या है? कम. इट्स कन्वर्जिंग पावर इज लेस. अब ये जो पैरेलल रेज है वो कहां से पास होती है? फोकस से. ये थिन था तो ज्यादा रिफ्रैक्शन होगा ही नहीं. क्लियर? तो अब इसकी फोकल लेंथ क्या हो गई इसके कंपैरिजन में? ज्यादा हो गई. सो इफ पावर इंक्रीजेस, फोकल लेंथ डिक्रीजेस. अगर पावर बढ़ेगी, यहां पे पावर ज्यादा है, थिकनेस ज्यादा है. इफ थिकनेस इज मोर, पावर इज मोर, एंड इफ पावर इज मोर, फोकल लेंथ विल डिक्रीज. क्लियर? एंड इफ पावर इज लेस, फोकल लेंथ विल इंक्रीज. एकदम सेम कंसेप्ट है कि अगर आप 2f पे राउंडर रखते हो, तो जितना ज्यादा दूर होगा उतना ज्यादा ये कर्वेचर कम होगा. जितना ज्यादा राउंडर पास में होगा उतना ज्यादा ये कर्वेचर ज्यादा होगा. जितना ज्यादा कर्वेचर होगा उतना ज्यादा लेंस थिक होगा. क्लियर? सो आपको इस पॉइंट से क्या याद रखना है? जितनी ज्यादा पावर उतनी कम फोकल लेंथ. सेम कॉन्केव लेंस के लिए
If a concave lens is thin, so उसकी डाइवर्जिंग कैपेबिलिटी कम है, कम डाइवर्ज किया, सो व्हेन एक्सटेंडेड बैकवर्ड उसका फोकस कहाँ होगा, दूर होगा. अगर थिक है, सो इट्स डाइवर्जिंग कैपेबिलिटी इज आल्सो हाई, उसका फोकस कहाँ होगा, पास में होगा. तो दोनों में सेम, अगर कन्वर्ट ज्यादा कर रहा है तो भी फोकल लेंथ कम होगी, डाइवर्ट ज्यादा कर रहा है तो भी फोकल लेंथ कम होगी. तो कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग पावर को क्या बोलते हैं, पावर ऑफ लेंस बोलते हैं. सो जितनी ज्यादा पावर ऑफ लेंस होगी उतनी कम फोकल लेंथ होगी. क्लियर? सो मैथमेटिकली, आई होप ऑल दिस इज क्लियर. ability of lens to converge or diverge light rays is known as power of lens. Mathematically, it is defined as the reciprocal of focal length. Focal length. So power is 1 upon f. What is power? Power is 1 upon f. Clear? Mathematically, it is defined as the reciprocal of focal length. Focal length का आप reciprocal लोगे तो आपको क्या मिलेगा, power. तो focal length जितनी कम होगी power उतनी ज्यादा होगी. ये focal length जितनी ज्यादा होगी power उतनी कम होगी, and vice versa. Okay? So what is its unit? इसकी unit क्या है? Now what is the SI unit of focal length? फोकल लेंथ अभी हमने क्वेश्चंस में देखा सेंटीमीटर, बट ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर्स. सो बिफोर फाइंडिंग आउट पावर वी हैव टू कीप फोकल लेंथ इन मीटर्स. फोकल लेंथ किस में रखना है, मीटर्स में. तो 1 अपॉन m, फोकल लेंथ की यूनिट क्या है, मीटर है. 1 अपॉन m मतलब मीटर रेज टू -1. 1 अपॉन m, पावर की यूनिट क्या हो गई, 1 अपॉन मीटर. 1 अपॉन मीटर मतलब m रेज टू -1, और उसको क्या नाम दिया गया, m रेज टू -1 यूनिट हो गई पावर की, बट उसको नाम क्या दिया गया, डायोप्टर, डिनोटेड बाय कैपिटल D. डिनोटेड बाय कैपिटल D. क्लियर? F मींस फोकल लेंथ की यूनिट क्या होगी, मीटर्स होगी. m रेज टू -1, उसको नाम क्या दे दिया गया, डायोप्टर. नाउ इन द लास्ट लेक्चर यू पीपल हैव ऑलरेडी स्टडीड that the focal length of a convex lens is positive and focal length of concave lens is negative. अगर concave की पावर आप निकालोगे, focal length नेगेटिव है तो पावर भी क्या आएगी, नेगेटिव. convex की हम पावर निकालेंगे, focal length पॉजिटिव है तो पावर भी क्या आएगी, पॉजिटिव. so power of convex lens is always positive and power of concave lens is negative. Clear? Power of convex lens is positive while power of concave lens is negative. इसलिए आपने देखा है बहुत लोगों के नंबर माइनस में होते हैं, तो जिनके नंबर माइनस में है उनको कौन सा लेंस होता है, कॉन्केव, और जिनके नंबर प्लस में होते हैं उनको कौन सा लेंस होता है, कॉन्वेक्स. अब माइनस प्लस क्यों आता है, कैसे आता है, उसे हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने ही वाले, 11th चैप्टर में. ओके, सो pause this video here, write down this very easy topic. Okay, power of lens भी complete हो गया है. अब इसके numericals करेंगे and remaining questions then the chapter is completed. Okay, pause this and write this. Then open page number 184. Page number 184. Define one diopter of power of lens. Define one diopter of power of lens. Power equals to क्या होता है, 1 by f. Now power 1 diopter कब आएगी, when focal length will be 1 meters. When focal length is 1 meters, then power is also 1 diopter.
इफ फोकल लेंथ ऑफ एनी लेंस इज 1 मीटर, तो 1/1 तो क्या हो गया, 1 ही रहा। और जब मीटर्स में हम यूनिट लेते हैं फोकल लेंथ की, तो पावर की यूनिट किस में आती है, डायप्टर्स में। सो एक ऐसा लेंस जिसकी फोकल लेंथ 1 मीटर है, उसकी पावर कितनी होगी, 1 डायप्टर। तो वही आपको डेफिनेशन लिखनी है। सो व्हाट इज 1 डायप्टर ऑफ पावर ऑफ लेंस? It is the power of lens having focal length equal to 1 meter. It is the power of lens having focal length equal to 1 meter. Okay? अब सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेकेंड, इट इज इंपॉर्टेंट। ओके, सेकेंड वन इज इंपॉर्टेंट। अ कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ अ नीडल at a distance of 50 centimeter from it. Where is the needle placed in front of the convex lens? If the image is equal to the size of the object, also find the power of this lens. पावर के लिए हमें क्या चाहिए, फोकल लेंथ चाहिए। ठीक है, हमें यहां पे सिर्फ क्या दिया है, इमेज डिस्टेंस। आपको बोला है अ कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ अ नीडल एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। सॉरी, a convex lens forms a real and inverted image of a needle. अब convex lens real and inverted image कहाँ form करता है, right hand side पे। You can refer to ray diagrams. Virtual and erect image जो last case था वो left side पे, बाकी सारे images right side पे। तो image distance आपको दिया है 50 सेंटीमीटर, तो V कितना दिया है, 50। आपको बोला है this lens forms a real inverted image and आगे क्या लिखा है, वेयर इज द नीडल प्लेस्ड, मतलब ऑब्जेक्ट कहां प्लेस किया, नीडल ऑब्जेक्ट है, तो नीडल कहां प्लेस किया, मतलब हमको क्या निकालना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो मैग्निफिकेशन हम जज कर सकते हैं। रियल इन्वर्टेड इमेज है, मतलब मैग्निफिकेशन का साइज साइन क्या आएगा, माइनस। रियल इन्वर्टेड इमेजेस के लिए मैग्निफिकेशन क्या होता है, नेगेटिव होता है। और इमेज क्या है, ऑब्जेक्ट के इक्वल है, तो क्या आएगा, 1 आएगा। इफ इमेज साइज इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट साइज, मैग्निफिकेशन इज 1 और -1। ओके, लेस देन 1 तो डिमिनिश, ग्रेटर देन 1 तो एनलार्ज, वो सब डिस्कस कर चुके हैं। सो मैग्निफिकेशन -1 क्यों आया, बिकॉज फर्स्ट इट इज रियल एंड इन्वर्टेड एंड इट इज ऑफ द सेम साइज। अब हमें पावर फाइंड करना है। पावर से पहले क्या फाइंड करना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। नाउ दिस इज अ लेंस, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है लेंस में, V/U। लास्ट लेक्चर रेफर कर सकते हो। मैग्निफिकेशन -1, V 50, U वी हैव टू फाइंड, तो U कितना हो गया, -50 सेंटीमीटर्स। U कितना आ गया, -50 सेंटीमीटर्स। Now 1/f, U मिल गया, we have to find power and for power we need focal length. Now 1/f equals to 1/b, लेंस फॉर्मूला यूज होगा। बाय वी विल यूज लेंस फॉर्मूला, क्योंकि यहाँ पे लेंस दिया है, तो इतना तो बेसिक लॉजिक रखना कि लेंस दिया और मिरर फॉर्मूला लगा के मत आना। ओके, 1/f equals to 1/b minus 1/u। v कितना है, 50, 1/50 minus u कितना है, -50। so 1/u will be minus 1/50, 1/50 minus and minus plus 1/50, 2/50। so f कितना आ गया, 25, unit will be centimeters। now we have to find power। before finding out power, the unit of focal length should be meters। क्या होनी चाहिए, meters होनी चाहिए। so focal length कितनी हो गई, 25 सेंटीमीटर्स मीन्स 0.25 मीटर्स। क्लियर। पावर इज 1/f, 1/0.25, 100/25 मीन्स 4 डायोप्टर्स। कॉन्वेक्स था, इसलिए फोकल लेंथ भी पॉजिटिव आई
और पावर भी क्या आई, पॉजिटिव है. ओके, आई होप दिस इज क्लियर. थर्ड क्वेश्चन, राइट दिस एंड देन वी विल सॉल्व थर्ड. थर्ड एकदम सिंपल है. थर्ड पीपल कैन सॉल्व. फाइंड द पावर ऑफ अ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2. फोकल लेंथ दी है 2. पावर क्या होता है 1/f. तो 1/2 आंसर इज 0.5 डायोप्टर्स. सिंपली सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज हियर. f दिया है, p निकालना है, कुछ नहीं है इसमें. So pause this and write this, then we will continue with the exercise. एक्सरसाइज में हम फर्स्ट क्वेश्चन से जाते हैं. ठीक है, जितने बाकी रह गए सब सॉल्व कर लेते हैं. Which one of the following materials cannot be used to make a lens? अब लेंस क्या होता है, जिस पर रिफ्रैक्शन होता है. सो फॉर रिफ्रैक्शन वी आइदर नीड अ ट्रांसपेरेंट सरफेस और अ ट्रांसलूसेंट सरफेस. हम ओपेक सरफेस से कभी भी लेंस नहीं बना सकते. तो आपको वही देखना है कि इसमें कौन सा सरफेस ओपेक होगा. वाटर इज ट्रांसपेरेंट, तो वाटर आंसर नहीं. कैन नॉट बी यूज्ड आपको बताना है. ग्लास वाटर ट्रांसपेरेंट है, ग्लास भी ट्रांसपेरेंट है, तो उन दोनों से लेंस बन सकता है. प्लास्टिक, सो प्लास्टिक्स आर ऑफ मेनी टाइप्स. ओपेक भी होती हैं, ट्रांसलूसेंट भी होती हैं. सो देयर आर सम प्लास्टिक्स, जैसे पॉलीथीन्स हैं. ठीक है, वो प्लास्टिक्स का ही फॉर्म है. ठीक है, सो उसमें से तो लाइट पास हो सकती है क्योंकि वो ट्रांसलूसेंट सरफेसेस हैं. ऐसे ही ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक्स भी बनते हैं. So plastics can have both translucent surfaces and transparent surfaces. So plastic से भी लेंस बन सकता है. clay तो opaque surface ही होगा. You all know what clay is. So clay में opaque surface होगा, तो clay से लेंस नहीं बन सकता. तो फर्स्ट का आंसर है आपका. एक्सरसाइज हम सॉल्व कर रहे हैं पेज नंबर 185 पे. क्वेश्चन 1 आंसर इज B, clay. सेकेंड, the image formed by a concave mirror is observed to be virtual, erect and larger than the object. Where should be the position of the object? The image formed by a concave mirror is observed to be virtual, erect and larger than the object. Concave mirror है. Concave mirror में रियल भी बनती है, वर्चुअल भी बनती है. वर्चुअल कौन से केस में बनती है, लास्ट केस में. ठीक है, तो ऑब्जेक्ट कहां पे प्लेस होना चाहिए, between, last case कौन सा था, between focus and pole. So your answer will be between the pole of the mirror and its principal focus. सेकेंड का भी आंसर क्या है, D. ओके, कॉनकेव में वर्चुअल इरेक्ट इमेज, तो लास्ट केस में ऑब्जेक्ट कहां होता है, बिटवीन पोल एंड फोकस. थर्ड, where should an object be placed in front of convex lens to get a real image of the size of object? रियल इमेज भी चाहिए कॉन्वेक्स लेंस में और ऑब्जेक्ट जितनी भी चाहिए, तो कहां पे रखेंगे, थर्ड केस at 2f1 means at twice the focal length. थर्ड का आंसर क्या है, B. 2f मतलब at twice the focal length. उसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं बोल सकते क्योंकि दो सेंटर्स हम नहीं लिख सकते. तो लेंस में सेंटर ऑफ कर्वेचर जैसा वर्ड यूज नहीं करना है. फोकल लेंथ या ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ. ओके. फोर्थ, a spherical mirror and a thin spherical lens each have a focal length of -15. The mirror and lens are likely to be, दोनों की फोकल लेंथ माइनस में है. माइनस में फोकल लेंथ किसकी होती है, कॉनकेव की. ठीक है, लेंस हो या मिरर, माइनस फोकल लेंथ हो तो मतलब वो क्या है, कॉनकेव. तो इसका आंसर क्या होगा, द मिरर एंड द लेंस आर लाइकली टू बी बोथ कॉनकेव. ऑप्शन ए. फोकल लेंथ नेगेटिव है तो दोनों क्या होंगे, कॉनकेव होंगे. नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम अ मिरर, योर इमेज अपीयर्स इरेक्ट, द मिरर इज लाइकली टू बी. अब देखो, कॉनकेव में तो आप कहीं पे भी खड़े हो, इमेज रियल भी मिल सकती है, वर्चुअल भी मिल सकती है. इरेक्ट मतलब स्ट्रेट, उसके लिए इमेज कैसी होनी चाहिए, वर्चुअल होनी चाहिए.
सो वर्चुअल इमेजेस हमें दो मिरर्स में मिलती है, तो प्लेन में मिलती है और एक कॉन्वेक्स में मिलती है। प्लेन में हमें सेम साइज मिलती है और कॉन्वेक्स में हमें डिमिनिश्ड मिलती है। यहां पे साइज तो आपको बताया ही नहीं, आपको बोला था इमेज इज इरेक्ट, तो प्लेन में भी इमेज हमेशा इरेक्ट होगी, कॉन्वेक्स में भी इमेज हमेशा इरेक्ट होगी, कभी भी इन्वर्टेड नहीं होगी। क्लियर? कॉन्वेक्स मिरर में देयर वर टू केसेस, ओके, इन बोथ द केसेस द इमेज फॉर्म वाज वर्चुअल एंड इरेक्ट। प्लेन में तो एक ही मैंने बताया आपको इमेज फॉर्मेशन, उसमें भी वर्चुअल एंड इरेक्ट। सो योर आंसर इज नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम अ मिरर योर इमेज अपीयर्स इरेक्ट, द मिरर इज लाइकली टू बी, योर आंसर इज आइदर प्लेन और कॉन्वेक्स। सो आंसर ऑफ फिफ्थ इज डी। Which of the following lenses would you prefer to use while reading small letters found in a dictionary? Okay. Which of the following lenses would you prefer to use while reading small letters found in a dictionary? A convex lens of focal length 50 centimeters, a convex lens of focal length, a concave lens of focal length 50 centimeter, a convex lens of focal length 5 centimeter and a concave lens of focal length 5 centimeters. अब देखो लेंस कौन सा यूज होगा पहले हम वो डिसाइड कर लेते हैं। सो विच ऑफ द फॉलोइंग लेंसेज वुड यू प्रेफर टू यूज व्हाइल रीडिंग स्मॉल लेटर्स फाउंड इन अ डिक्शनरी? तो पहली बात तो लेंस कौन सा होना चाहिए? कॉन्वेक्स होना चाहिए, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस ही एनलार्ज्ड इमेजेस फॉर्म कर सकता है। कॉन्केव लेंस ऑलवेज फॉर्म्स डिमिनिश्ड इमेजेस, तो पहले से इतने छोटे फॉन्ट्स होंगे और छोटे तो नहीं करेंगे, तो लेंस तो हो गया फिक्स कॉन्वेक्स। अब लेंस की पावर क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए। लेंस की पावर अगर ज्यादा नहीं होगी तो इमेज ज्यादा एनलार्ज नहीं होगी। ये बात समझ आ रही है? अगर आपको ज्यादा हाई रेजोल्यूशन चाहिए तो लेंस की पावर क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए। लेंस की पावर ज्यादा रखने के लिए फोकल लेंथ क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। क्लियर? सो कॉन्वेक्स लेंस यूज होगा, ये कंफर्म है, बिकॉज दिस लेंस इज ओनली केपेबल ऑफ फॉर्मिंग एनलार्ज्ड इमेजेस। सो जो मैग्नीफाइंग लेंस होता है वो आप एकदम पास में रखते हैं, जैसे ये बुक है तो यहाँ पे मैग्नीफाइंग लेंस रखोगे। तो क्यों रखते हैं? क्योंकि मैग्नीफाइंग लेंस कौन सा होता है? कॉन्वेक्स लेंस होता है। आपने मैग्नीफाइंग लेंस देखे होंगे, वो कॉन्वेक्स होता है। तो अगर आप उसको बुक के एकदम पास में रखते हो, कुछ भी आप रीड कर रहे हो उसके पास में रखते हो, तो वो जो बुक है वो कहां पे आ जाती है? इट कम्स बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, मतलब कॉन्वेक्स लेंस का लास्ट केस हो जाता है। तो वो कैसी इमेज फॉर्म करती है? वर्चुअल एंड इरेक्ट ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। जैसे बुक यहाँ पे तो इमेज भी यहीं बनी, तो आपको वहीं पे दिखेगी उसकी इमेज, थोड़ा दूर दिखेगी। जितना पास में आपने बुक रखा है ना उतना पास नहीं इमेज दिखेगी, थोड़ा दूर दिखेगी। सो इट विल बी कंफर्टेबल फॉर यू टू रीड। ओके, सो कॉन्वेक्स लेंस विथ फोकल लेंथ इसकी कम हो, किसकी कम है? 5 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर इज ग्रेटर, सो 5 सेंटीमीटर। तो आपका आंसर होगा कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। Your answer of sixth is option C. Okay. Seventh. We wish to obtain an erect image of an object using a concave mirror of focal length 15. What should be the range of the distance of object from the mirror? What is the nature of the image? Is the image larger or smaller than the object? And draw a ray diagram to show the image formation in this case. Concave mirror से आपको कौन सी इमेज फॉर्म करनी है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो कॉन्केव मिरर से वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज कौन से केस में फॉर्म होती है? लास्ट केस में। इफ ऑब्जेक्ट इज बिटवीन फोकस एंड पोल, तो परपेंडिकुलर इंसिडेंट करो। ओके, सेकेंड
When these rays are extended backwards, it will form a virtual erect and enlarged image. Okay, this is the last case of concave mirror. अब आपको बोला है कि if the focal length is 15, ये डिस्टेंस क्या है 15, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की रेंज कितनी होगी? यहाँ पे साइन कन्वेंशन नहीं लगाना. If this distance is 15, तो ऑब्जेक्ट आप कहां पे रख सकते हो जिससे आपकी इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट आए? तो ऑब्जेक्ट हम पोल के लेफ्ट हैंड साइड पे या फोकस के राइट हैंड साइड पे कहीं भी रख सकते हैं. तो जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, जो आपका जिसका फर्स्ट आंसर है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की रेंज क्या होनी चाहिए? 0 से ज्यादा होनी चाहिए. पोल पे तो नहीं रख सकते, पोल पे होता तो 0 होता, पोल पे तो ऑब्जेक्ट को नहीं रख सकते, तो 0 से ज्यादा होनी चाहिए. बट फोकल लेंथ कितनी है? 15, तो 15 से कम होनी चाहिए. तो ये आपका आंसर. U should be greater than 0 but less than 15. 15 के इक्वल नहीं हो सकता. अगर फोकस पे रख देंगे तो इमेज कहां बनेगी? रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी. हमें वर्चुअल एंड इरेक्ट चाहिए. तो यही केस के आपको ऑब्जेक्ट रेंज के क्वेश्चंस आते हैं. सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस शुड बी ग्रेटर देन 0 बट लेस देन फोकल लेंथ. ये फर्स्ट आंसर. सेकेंड क्या है? व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज? इमेज इज virtual and erect. Is the image larger or smaller than the object? Image is larger than the object. दिख रहा है आपको? And draw a ray diagram to show the image formation in this case. तो वो तो मैंने बना ही दिया है. Okay, so this is the answer of your question number 7. Name the type of mirror used in the following situation. Headlights, मैं ये डिस्कस कर चुका हूँ. हेडलाइट्स में कौन सा मिरर यूज होता है? कॉनकेव मिरर. साइड और रियर व्यू मिरर, साइड व्यू मिरर कौन सा होता है? कॉन्वेक्स. तो फर्स्ट कॉनकेव, ए कॉनकेव, बी कॉन्वेक्स. सोलर फर्नेस में कॉनकेव. सबके रीजंस भी मैंने आपको बता चुका हूँ. सपोर्ट योर आंसर विद रीजन दैट यू कैन राइट. ओके, 9th क्वेश्चन एक्सपेरिमेंट बेस्ड है, वो भी कर लेते हैं. देन आफ्टर दैट 2 more questions are remaining. बाकी तो सब हो गए थे हमारे न्यूमेरिकल्स. ओके, write this. Pause this and write this. I'm going to rub the board. Ninth question. One half of convex lens is covered with a black paper. Will this lens produce a complete image of the object? Verify your answer experimentally. Explain your observation. Convex lens का हाफ पोर्शन एक ब्लैक पेपर से कवर कर दिया. ब्लैक पेपर क्या करता है? लाइट एब्जॉर्ब कर लेता है, तो उसको रिफ्रैक्ट तो होना ही नहीं देगा. क्लियर? सो लाइट रिफ्रैक्ट नहीं होगी उस पोर्शन से, तो आधा पोर्शन यूज करके कभी भी इमेज कंप्लीट बन सकती है, वो हमें बताना है. सो इमेज बन सकती है. कैसे बन सकती है हम देखते हैं. देखो, 9th क्वेश्चन, देयर विल बी 2 केसेस. लोअर हाफ इज कवर्ड. 2 केसेस हो सकते हैं. लेंस है, देयर आर 2 हाफ्स, अपर हाफ एंड द लोअर हाफ. So first case is lower half is covered and second upper half is covered. So when lower half is covered, shade this region. ठीक है, पेंसिल से इसको शेड कर दो, तो यहां से लाइट रिफ्रैक्ट नहीं हो सकती. ओके, अब देखो, suppose object is over here.
ओके। अब जो हमने हम जो रूल्स पढ़ते हैं, द 3 रूल्स व्हिच वी हैव स्टडीड फॉर इमेज फॉर्मेशन, वो सिर्फ थियोरेटिकल पॉइंट को समझने के लिए। वैसा तो नहीं है कि जब आप कोई ऑब्जेक्ट को लेंस से देखोगे या लेंस से प्रोजेक्ट करोगे तो लेंस में से वो 3 जगह ही लाइट रे इंसिडेंट हो रही होगी, ऐसा तो नहीं है। कोई भी ऑब्जेक्ट है, मैंने आपको फर्स्ट जब मैंने मिरर के लिए डायग्राम्स कराए थे तभी समझाया था कि दीज रूल्स आर फॉर थ्योरेटिकल पर्पस। मतलब अगर प्रैक्टिकली उन 3 पॉइंट पे कहीं पे इंसिडेंट होती है, पैरेलल जाती है तो फोकस से पास होगी, फोकस से आ रही है तो पैरेलल ही हो जाएगी। बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ वहीं से पास होती है, कहीं और से भी पास हो सकती है। उसमें भी एंगल टू एंगल रिफ्रैक्शन होगा या मिरर होगा तो रिफ्लेक्शन होगा, बट उसके रूल्स नहीं बनाए गए क्योंकि सब चीज तो हम नहीं पढ़ सकते। तो प्रैक्टिकली रे दूसरी जगह से तो पास हो सकती है। तो अब जब रिफ्रैक्शन होगा तो प्रैक्टिकली होगा, ऐसा तो नहीं होगा कि बुक में 3 ही रूल है तो प्रैक्टिकली रिफ्रैक्शन 3 ही रूल्स के हिसाब से होगा, ऐसा तो कुछ नहीं होता है। सो इफ एन ऑब्जेक्ट इज ओवर हियर, तो अगर एक रे पैरेलल जाती है तो वो रे कहां से पास होगी? फोकस से ही पास होगी। क्लियर? बट सपोज if a ray is passing this way, तो भी तो उसका क्या होगा? रिफ्रैक्शन ही होगा। क्लियर? तो भी उसका रिफ्रैक्शन ही होगा। जो रे यहां पे इंसिडेंट होगी उसका हमने रूल तो पढ़ा नहीं, बट प्रैक्टिकली उसका रिफ्रैक्शन तो होगा। देखो, आप खुद देखो, इफ अ रे इज इंसिडेंट दिस वे, ठीक है, तो यहां पे अगर आप नॉर्मल बनाते हो, इफ अ रे इज इंसिडेंट दिस वे, तो यहां पे अगर आप नॉर्मल बनाते हो तो ये बनी नॉर्मल, ठीक है। तो ये टूवर्ड्स द नॉर्मल जाएगी, वापस अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी, तो ये और ज्यादा रिफ्रैक्ट होगी, ठीक है, फोकस से भी और पहले से निकलेगी। सो अगर हम रूल्स के अलावा भी पॉइंट्स ले तो भी रिफ्रैक्शन तो हो गई। तो प्रैक्टिकली व्हेन द लोअर हाफ इज कवर्ड, रे यहां से नहीं पास हो सकती, ऑप्टिकल सेंटर से पास नहीं हो सकती, फोकस से नहीं पास हो सकती। क्लियर? बट वो दूसरे पॉइंट से तो पास होके इमेज फॉर्म कर सकती है। सो इमेज विल बी फॉर्म्ड ओवर हियर, A dash, B dash. So complete image will be formed. तो यहाँ पे क्या लिखना है? Therefore, complete image will be formed. समझ आ गया सबको? ये डायग्राम आपको ड्रॉ करना है whenever this question is asked. अब इसका सेकंड केस हम देखते हैं। upper half is covered. So what will happen? F1, 2F1, F2, 2F2. Okay. So when upper half is covered, तो ऑब्जेक्ट इज सपोज अगेन हुआ है, तो यहां पे पैरेलल रे नहीं ले सकते, फोकस से तो ले सकते हो। ओके, अगर रे यहां पे इंसिडेंट होती है तो वो कैसे जाएगी? इस टाइप से जाएगी। Clear? So image is again formed here. समझ आ गया? So in both the cases image will be formed. So this is the answer of your question number 9th. Even if one half of lens is covered, then also complete image of that object will be formed. Okay? Now pause this and write this, then see question number 16th. Okay, we will write here only.
Find the focal length of a power of lens of a lens of power -2 diopters. Power कितनी दी आपको? -2 diopters. You have to find focal length. Power is 1 upon f. We have to find f. So f कितना हो गया? 1 upon p. p कितना है? -2, तो -1 upon 2 -0.5. When focal length is in meters, then power comes out to be in diopters. Then when power is in diopters, focal length will be in meters. Focal length is meters. -0.5 meters means -50 centimeters. What type of lens it is? It is a concave lens because focal length is negative. Last question of this chapter. A doctor has prescribed a corrective lens of power 1.5 diopter plus 1.5. Find the focal length of the lens. Again, P equals to 1 by F, F equals to 1 by P. 1 by 1.5. 1 by 1.5 मतलब 2 by 3. 0.67 सेंटीमीटर्स आएगा, मीटर्स आएगा, तो कितना आ गया? 67 सेंटीमीटर्स. ओके. 10 by 15, 2 by 3.67. ओके. Is the prescribed lens diverging or converging? अब प्लस हो तो लेंस कौन सा होता है? कॉन्वेक्स होता है. एंड कॉन्वेक्स लेंस इज कन्वर्जिंग. सो लेंस इज converging. Okay, with this the chapter is completed. All the questions are completed. So just go through this chapter if you have any doubt. In the next session I will start with chapter number let's take easy chapter now. No, most of the schools will opt for electricity. So in the next session I will start with chapter number 12, which is electricity, and it is the most lengthy chapter of your textbook. Okay, so write this and wait for the next video session. Thank you.